Okay. Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today we start the lecture of Operation Research, right? So, in the previous talk of our Operation Research, we are discussing the chapter number 1, which is the introductions of Operation Research, right? And we are just discussing what is the use of the operation research, what is the history of operation research, why it is helpful, the different kind of the phases of the operation research, right? These are the some kind of the basic of the operation research. We also discussing the various applications of the operation research, and at last of our the previous lecture we are discussing that we start with the chapter number 3, which is the transportations problem, right? So uh, the the reason behind the skipping of the chapter number 2, which is the linear programming, which is very which is the one of the most difficult chapter of the operation research, and which is required some kind of the face-to-face communications, and how to make the iterations tables, and due to that we are still skipping this chapter, and we will discussing at the time of the classroom study, which is very helpful at the time of the face-to-face discussions, and I can thoroughly study you with the help of the classroom teaching, right? So as compared to the linear programming, the transportation problem, which is the quite easy chapter, they have basically two types of the transportations problem, uh, and basically we can start with the transportations problem. We have some kind of the example, right? सपोज मैं आपको थोड़ी इजी तरीके से इसको बताने की कोशिश करूँ, तो ये ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिकली है क्या? तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम्स के अंदर हम बेसिकली क्या चीज़ हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट ऑपरेशन रिसर्च मैथमेटिकल मॉडल्स वी आर फाइंडिंग द सच डिमांड एंड सप्लाई. आप एक मैं आपको थोड़ो इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँ, तो सपोज यू आर रनिंग सम काइंड बिजनेस, राइट, विच इज़ यू आर selling the milk pouches, right? So the demand of that milk pouches of the previous month, previous week, right, which is you are noted, right? You have to assume that how the fluctuation is arise for the next week in the as a demand of the milk pouch, and how the supply is going on against the demand. So अगर ये जो पूरा प्रॉब्लम्स है ना, वो डिमांड और सप्लाई के बीच जो है एक फाइट जैसा प्रॉब्लम है. आपको कितनी डिमांड के अंदर कितना हमें सप्लाई करना चाहिए. जैसे कि हम लोग अगर आप समझो कि आपकी डिमांड है वो बेसिकली एग्ज़ाम के अंदर 8 SPI लाने की है, राइट? अब 8 SPI लाने के लिए आपको एग्ज़ाम में बेसिकली क्या करना पड़ता है, तो कि 8 SPI आपको एग्ज़ाम में एज अ रिज़ल्ट लाने के लिए बेसिकली आपको उतना वहाँ पे एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम वहाँ पे आपको सप्लाई करना पड़ता है एज अ सप्लाई ऑफ योर एग्ज़ाम, राइट? ये तो आपकी डिमांड थी 8, पर आपको उसके अगेंस्ट इतना सप्लाई करना चाहिए ना. जिसकी जितनी डिमांड होगी उस तरीके से उतना सप्लाई करना पड़ेगा. अगर आपको वो इतना सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे वो क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी कि आप मार्केट के अंदर जो है वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. So this is all about the transportations problem. So now we further start with the furthermore introductions of the transportations problem. The we start with the introductions of the transportations problem. One of the important applications of the linear programming is in the area of the physical distributions. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर एक लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस थी एज ए
physical distribution, that means the transportations, right, of the goods and service from the several supply centers to the several demand centers. एक ये चीज़ आपने अभी जो हमने डिस्कस की, एक सप्लाई सेंटर से एक डिमांड सेंटर के बीच का एक जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसपोर्टेशन. It is easy to mathematically express a transportation problem in the term of the linear programming. अगर ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको लिनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर आपको सपोज दिखाना है तो वो बहुत ईजी है, विच कैन बी सॉल्व बाय द सिंप्लेक्स मेथड, राइट. बट बिकॉज it involve a large number of the variables and the constraints, it make a long time to solve it. जो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से. सपोज आपका जो भी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशंस का वो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पर ये इसके अंदर वेरिएबल और कंस्टेंट्स, क्योंकि आप देखोगे ना तो इसके अंदर अब नेक्स्ट जो टेबल आएगा वो टेबल बहुत बड़ा टेबल होता है. अब ये टेबल के अंदर काफ़ी सारे कंस्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं, तो उस तरीके से उसका जो सॉल्यूशंस है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा. तो पॉसिबल है, पर ये ट्रांसपोर्टेशंस है इसके अंदर एक ऐसा प्रोविज़न है उसको हम लोग शॉर्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. हावेवर द ट्रांसपोर्टेशन एल्गोरिदम इज नेमली एज ए stepping stone methods and the MODI method. MODI, that means what? The modified distributions method have been developed for this problem. The structure of the transportation problem, which is involved a large number of the shipping routes from several supply origin to several demand distributions. इसके अंदर ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपोर्टेशंस का वो कैसा होता है कि एक सेवरल इसके जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो इसका रूट कैसे होता है. ये रूट है वो बेसिकली सेवरल डिमांड टू सेवरल सप्लाई का डेस्टिनेशंस होता है. द ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स एज एन आइटम, राइट, दैट शुड बी शिफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन टू द डेस्टिनेशंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द required quantity of the goods and service at each destination center. This should be done within the limited quantity of the good and service available at each supply center. The minimum transportation time and the cost, which is our objective of the transportation problem. अब मैं आपको यही पैराग्राफ है जो इसको आसान तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये लोग कहना क्या चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर जो बेसिक उसका जो शिपिंग रूट्स होता है वो कैसा होता है. तो बेसिक डिमांड सेंटर टू बेसिक दी सप्लाई सेंटर, वहाँ ऐसा एक रूट बनता है. आपको चीज़ कहाँ पे पहुँचानी है विथ यूजिंग द ट्रांसपोर्टेशंस. आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशंस मीडियम यूज़ करके, सपोज़ आपने एक लोडिंग व्हीकल ले लिया तो लोडिंग व्हीकल को आपको सपोज़ के सुबह आपके एरिया का ले लीजिए एक एग्जांपल कि अहमदाबाद के अंदर पूरा अमूल जो है वो आनंद में मैन्युफैक्चरिंग होकर पैक होकर अहमदाबाद के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अंदर कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो हर एक अमूल शॉप की उसकी खुद की एक डिमांड होती है. उस खुद की डिमांड के अगेंस्ट अमूल उसको सप्लाई करता है, राइट, और वो डिफरेंट रूट के थ्रू पास होता है. दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. एक ओरिजिन टू डेस्टिनेशन तक उसका गुड्स एंड सर्विस ट्रांसपोर्टेशंस होता है. और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशंस का रूट ऐसे बनना चाहिए कि उसमें सबसे मिनिमम जो है वो कोस्ट और टाइम का कंजप्शंस हो, राइट. सो the transportations algorithm discussed in this chapter is applied to minimize the total cost of the transportations a homogeneous commodity, that means the product, from the supply center to the demand center. अब ये चीज़ क्या कहते हैं, ये अल्गोरिदम का मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि उसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस कम होना चाहिए. कहाँ से, ताकि प्रोडक्ट के लिए जो उसका ओरिजिन सेंटर है जहाँ पे वो बनता है और जहाँ पे उसका डिमांड है वहाँ तक पहुँचाने में जितना कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट किसी भी तरीके से कम होना चाहिए.
For example, financial resources are distributed in such a way that the profitable return is to be maximized. There are the various types of the transportations model, and the simplest of them was the first presented by F.L. Hitchcock. F.L. Hitchcock in the 1941. काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशंस मॉडल्स जो है वो अवेलेबल है, पर ये जो सिंपल तरीके का जो ट्रांसपोर्टेशंस मॉडल था वो फर्स्ट टाइम एफ.एल. हिचकॉक ने 1941 में एस्टेब्लिश किया था. इट वॉज द फर्दर डेवलप बाय टी.सी. कुपमैन्स. इट वॉज फर्दर developed by T.C. Koopman in 1949 and the G.B. Denzing in 1951. The several extensions of the transportations models and the methods have been subsequently developed. उसके बाद भी कुछ डेवलपमेंट इसके अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं. सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शंस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशंस. अब इसी के अंदर मैं आपको और थोड़ा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूँ तो ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम है ना, वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. बेसिकली 2 ही टाइप के होते हैं. अगर उसका मैं आपको बताऊँ कि इसका क्लासिफिकेशंस क्या है. क्लासिफिकेशंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज़ व्हाट. द ट्रांसपोर्टेशंस problems are basically in nature are basically 2 types. First one which is the feasible solutions and second one which is the optimum solutions. अब फिजिबल सॉल्यूशन है, उसको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन भी हम लोग बोल सकते हैं. एक आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, दैट इज़ द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन. अब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशंस के अंदर 3 तरीके के मैथमेटिकल्स मॉडल है, 3 तरीके की टेक्निक्स हैं. नॉर्थ वेस्ट टेक्निक्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर टेक्निक, लीस्ट कोस्ट मैथड टेक्निक, और लास्ट which is the WEM method, which is the Vogel approximations technique. Last which is the Vogel approximations technique. ये हो गया फिजिबल सॉल्यूशंस का. अब फिजिबल सॉल्यूशन के साथ दूसरा जो क्लासिफिकेशन था which is the optimum solutions of the transportations problem. अब optimum solutions of the transportations problem कैसे होता है. अब optimum solutions of the transportations problems are done with the 2 method, which is the first method which is known as a stepping stone method. अब पहली जो मेथड है उसको हम लोग स्टेपिंग स्टोन मेथड बोलते हैं. अब दूसरी मेथड को हम लोग मोडी. अब पहले भी हमने डिस्कस किया मोडी, दैट मीन्स द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड. लाइक सो हाउ द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम इज डन. तो आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल 9.1, राइट. उसमें एक एग्जाम्पल दिया है. ए कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ S1, S2 एंड S3. आप देखोगे तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके साइड पे मुझे S1, S2 और S3 दिए गए हैं, विच इज़ दी वन टाइप ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स, राइट, फैसिलिटीज़. वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ with the production capacity of 7, 9, 18, right, 7, 9, 18 in hundreds per week of a product. ये इसकी कैपेसिटी है जो इतनी कैपेसिटी यूनिट्स के अंदर 1000 में से हमें 100 में से हमें दी गई है. जो S1 की कैपेसिटी है दैट इज़ 7, S2 की कैपेसिटी है दैट इज़ 9 एंड S3 की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 18, राइट. These units are to be shipped. These unit are to be shipped to 4 warehouses, which is the D1, D2, D3 and D4, right. अब ये जो यूनिट्स है वो सारे 4 वेयरहाउस के अंदर हमें शिफ्ट करने हैं, विच इज़ द D1, D2, D3 एंड D4 विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी. अब उसकी डिमांड दी गई है, सप्लाई कितना कर सकता है वो हमें कैपेसिटी उसको दी गई थी 7, 9, 18 टोटल, विच इज़ दी 34 पर वीक फ्रॉम दी 100, राइट. अब उसका डिमांड दिया गया है 5, उसका हमें डिमांड दिया गया है विच इज़ दी 5, 8, 7 एंड 14
from the unit of the 100 per week respectively. The transportation cost in the rupees per unit between the factories to warehouse are to be इन दी टेबल बिलो, राइट. अब ये कितना ट्रांसपोर्टेशंस हो सकता है, यानी आप ये प्रॉब्लम को समझो कि ये 3 प्लांट है, प्लांट नंबर S1, S2 एंड S3. उसकी जो पर वीक की कैपेसिटी है 100 प्रोडक्ट में से वो कितनी है कि S1 जो प्लांट है उसका कैपेसिटी पर वीक में 7 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है. अब S2 की कैपेसिटी 9 प्रोडक्ट की है, S3 की कैपेसिटी 18 प्रोडक्ट्स की है. उसके सामने 4 वेयर हाउसेज हैं और 4 वेयर हाउसेज दैट इज़ द D1, D2, D3 एंड D4. उसकी डिमांड कितनी है, D1 को पर वीक में चाहिए 5 प्रोडक्ट, D2 को चाहिए 8 प्रोडक्ट, D3 को चाहिए 7 प्रोडक्ट और D4 को चाहिए 18 प्रोडक्ट पर वीक. अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग आगे देखते हैं. आपके पास डिमांड और सप्लाई पूरा है टेबल, उसके अंदर के जो पर वीक के जो डेटा है आपको वो दिए गए हैं. ये टेबल आपको एग्ज़ाम में भी दिया गया होगा. फॉर्मुलेट दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज एन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अब मॉडल का फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, अब ये जो आपको डेटा दिए गए हैं वो डेटा को हमें फॉर्मुलेट करना है, यानी कि उसको थोड़ा ढंग के तरीके से लिखना है, राइट. सो लेट x of ij, which is the number of unit of the product which is to be transported from the factory, which is the 1, 2, 3, to the warehouse, which is I, which is the 1, 2, 3, 4. As the transportation problem is stated that in the linear programming model, so minimize the transportation. आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो कि हमें कैसे भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. सो द मिनिमाइज z इज इक्वल टू 19x1 प्लस 30x2 प्लस ये आप 1 दिखा है, आप 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, 1 3 और 1 4. ये एक आपका इक्वेशन हो गया, राइट. फिर दूसरा इक्वेशन स्टार्ट होगा, यानी आपका हो गया 19 1 1 प्लस 13 1 2 प्लस 15 1 3 प्लस 10x 1 4 प्लस 70x 2 1 प्लस 30x 2 2 प्लस 40x 2 3 प्लस 60x 2 4. जैसे आप उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, जो थर्ड वाला जो रो है ना वो थर्ड वाला रो को आपको इनकॉर्पोरेट करना है. और आपके सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स जो है वो क्या चीज़ है, यानी आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं. तो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं विच इज़ द x, ये हमारा कंस्ट्रेंट्स है 1 1 प्लस x 1 2 प्लस x 1 3 प्लस x 1 4. ऐसे x 2 1 प्लस x 2 2 प्लस x 2 3 प्लस x 2 4. और उसके सामने जो हमें जो बेसिक जो तीनों प्लांट की जो कैपेसिटी दी गई ना दैट इज़ द कंस्ट्रेंट. उसकी कैपेसिटी इतनी है, उसमें मैक्सिमम इतना ही हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं हो. प्लांट का कैपेसिटी नहीं है, आपकी डिमांड कितनी भी हो पर प्लांट की कुछ कैपेसिटी है, उसके ज़्यादा वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते नहीं है. दैट इज़ द कंस्ट्रेंट्स. सो अगर ये प्रॉब्लम को लिनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के अंदर सॉल्व करना था तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, इसका फॉर्मुलेशन ऐसे हो सकता था. अब हम लोग जाएंगे ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर. अब ये जो प्रॉब्लम है वो इसके प्रॉब्लम्स के अंदर ये बैलेंस प्रॉब्लम है कि नहीं है, इसके अंदर कोई डीजेनरेसी नहीं है. अब डीजेनरेसी कैसे चेक कर सकते हैं, इन दिस प्रॉब्लम वेर m प्लस n कंस्ट्रेंट्स, राइट, one of each source of the supply and the distribution, which is the m into n variable, right. अब आप देखिए m that is the row, n that is the column. Constraints are the equations. Since the transportation model is always balanced, the supply is equal to total demand, total supply is equal to total demand. One of each equation is extra redundant.
the extra constraint equations can be derived from the other constraint equations with affecting the feasible solutions. It follows that any feasible solutions for the transportations model is must be exactly have been exactly that. अब ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम्स की नॉन नेगेटिविटी हमें चेक करनी है, तो आपको ये नॉन नेगेटिविटी बोल सकते हैं या फिर डीजनरेसी बोल सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम का डीजनरेसी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो फिर ये जो इक्वेशंस है आपको परमानेंटली याद रखना पड़ेगा. सो ये जो इक्वेशंस है वो क्या बात कर रहा है. सो m plus n minus 1, which is the non-negative basic variable or the allocations, right? ये हम लोग आप देखेंगे ना तो रिमार्क्स के अंदर ये लिखा ही है. आप सेकंड रिमार्क्स पढ़ोगे तो सेकंड रिमार्क्स के अंदर दिया गया है when the number of positive allocations, the value of the decision variable at any stage of the feasible solution is less than the required number, so the row plus column minus 1. अब जो मैंने आपको पहले बताया, the number of independent constraints equation, the solution that is said to be degenerate, otherwise which is the non-negative. अभी जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था वो, the cell in the transportations table that have the positive allocations are called as a occupied cell, otherwise which is called as empty or the unoccupied cell. तो आपको डीजनरेसी सपोज चेक करनी है, तो डीजनरेसी कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं. सपोज आपके पास जो पूरा टेबल था वो टेबल के अंदर कितने ऑक्यूपाइड सेल है, दैट इज दी m, प्लस कितने अनऑक्यूपाइड सेल है, दैट इज दी ऑक्यूपाइड सेल माइनस अनऑक्यूपाइड सेल माइनस 1, और वो जो आएगा विच इज कॉल्ड एज ए degeneracy or the non-negative constraints, which is also called as a non-negative constraints. अब उसके आगे जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम है उसका अल्गोरिदम हम लोग कैसे कर सकते हैं. द अल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम्स मे बी समराइज्ड इनटू द फॉलोइंग स्टेप. अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं. तो सॉल्व करने के लिए आपको हम लोग बताते हैं, फर्स्ट फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स एंड अरेंज द डेटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म. अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपके पास जो प्रॉब्लम दिया गया है वो प्रॉब्लम को आपको अरेंज इन द डेटा फॉर्म, डेटा फॉर्म के अंदर अरेंज मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर उसको आपको कन्वर्ट करना है. द फॉर्मुलेशंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम इज similar to the linear programming problem formulations. Hence, the objective functions is the total transportation cost, and the constraints are the supply and the demand at each sources and the destination. Second, to obtain the initial basic feasible solutions. अब हमने इंट्रोडक्शन टाइम पे ही मैंने आपको थोड़ा बताया था कि इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस जो है in this chapter, which is the we can find with the three method, which is the northwest corner method, second which is the least cost method, and third which is the Vogel approximations method, which is called as a VAM or the penalty methods. The initial solution is obtained by any of the three methods, but satisfy the following conditions. The solution is must be feasible. Solution है वो feasible होना चाहिए. It must satisfy all the supplies and demand constraints, which is also called as a rim conditions, which is also called as a rim condition. वो सारे सप्लाई और डिमांड जो आपके मैट्रिक्स के अंदर है वो अगर फुलफिल हो जाता है, देन द प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज अ फिजिबल सॉल्यूशंस. जो आपका सॉल्यूशन है वो फिजिबल सॉल्यूशन है. द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इज मस्ट बी इक्वल टू, the number of positive allocation is must be equal to m plus n minus 1, where the m is the number of row, n is the number of column. जो हमने पहले डिस्कस किया था, मैंने आपको पहले ही वो चीज़ बताई थी. व्हाट इज़ आप प्रॉब्लम को कैसे चेक कर सकते हो उसके अंदर डीजनरेसी. जो m है वो m क्या उसको बताता है,
तो कि m बताता है कि कितने आपके नंबर ऑफ रो है, n बताता है कितने आपके नंबर ऑफ कॉलम है। एनी सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन, जो भी सॉल्यूशन ये ऊपर वाली कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर रहा है, which is called as a non-degenerate or the basic feasible solutions, otherwise which is called as a degeneracy or degenerate, otherwise which is called as a degeneracy or the degenerate. Now step number 3 क्या है? Test the initial feasible solutions for the optimality. In this chapter, the modified distributions method is discussed to the test the optimality of the solutions obtained in this step number 2. If the current solution is optimum, and then stop, otherwise determine the new improved solutions. और लास्ट में updating the solution, which is repeat the step number 3 until the optimum solutions which is to be reached. अब फिजिबल सॉल्यूशंस तो आप फाइंड आउट कर लोगे ये ऊपर वाली 3 मेथड से, पर अगर फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको फिजिबल सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है और नॉन नेगेटिव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो उस कंडीशंस के अंदर नॉन डीजनरेट और द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सपोज आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस कंडीशंस के अंदर आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मेथड जो भी है, स्टेपिंग स्टोन और मोदी मेथड, उससे जहाँ तक आपको फिजिबल सॉल्यूशंस ना मिले वहाँ तक आपको उसको यूज़ करते जाना है, अनटिल कहाँ तक जहाँ तक आपको फिजिबल और ऑप्टिमम सॉल्यूशंस मिले नहीं वहाँ तक। द मेथड ऑफ फाइंडिंग द इनिशियल सॉल्यूशन विच इज़ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। फर्स्ट जो मेथड है उसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है विच इज़ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCM. It is the simple and efficient methods to obtain the initial solution. This method does not take into account the cost of the transportation on the route of the transportation, on any route of the transportation. The method is summarized as follows. Step 1, start with the cell at the uppermost left. जो आपका लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ से स्टार्ट करके आपको वेस्ट तक आना है कॉर्नर तक, एंड एलोकेट द कमोडिटी इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द रिंग वैल्यू फॉर द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विच इज द मिनिमम. Step 2, if the allocation made in step 1 is equal to the supply available at the first source, then move vertically down to the cell 2-1 in the second row and the first column. Right? अगर आपको सपोज ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही है तो हम लोग जब ये सॉल्व करेंगे ना, मैं आपको नेक्स्ट सीधा एग्जांपल के ऊपर ही लेके जाता हूँ. एक ये रिमार्क थोड़ा पढ़ लेते हैं. रिमार्क क्या बोलना चाहता है? इफ़ द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एलोकेटिंग कमोडिटी एट द पर्टिकुलर सेल द सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड, then the next allocations of the magnitude 0 can be made in the cell either in the next row of the column. This condition which is called as a degeneracy. अब ये degeneracy तो हमने पहले ही पढ़ चुकी है. तो अब ये जो आपके पास एक एग्जाम्पल दिया गया, वो एग्जाम्पल आप सीधा आपको क्या करना है कि सीधा आपको फोकस कहाँ पे करना है? तो फोकस आपको करना है टेबल के ऊपर. मैं टेबल आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? आप टेबल को देखिएगा. अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ये पूरा जो टेबल है वो पहले ही हमने ले लिया था, पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. आप देखेंगे तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं. आपके पास गिवन प्रॉब्लम्स के अंदर थ्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है विच इज़ द S1, S2 एंड S3, और उसके नीचे उसका डिमांड दिया गया है पर वीक में वो कितना डिमांड कर रहा है. सॉरी, S1, S2 और S3
जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी जो है वो कितना सप्लाई कर सकता है पर वीक के अंदर 7 यूनिट, 9 यूनिट और 18 यूनिट, और पूरे वीक में 1000 में से वो 34 यूनिट है वो सप्लाई कर सकता है। जबकि 4 वेयर हाउसेज हैं, D1, D2, D3 एंड D4। अब उसकी डिमांड है, जो पर्टिकुलर डिमांड, उसकी खुद की डिमांड विच इज़ दी 5, 8, 7 और 14। सो सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये डिमांड और सप्लाई चेक कर लेनी है। योर sum of the supply which is the 34, right? 8 plus 9 plus 18 which is the 34। अब आपका जो सप्लाई का जो समराइज टोटल होता है वही डिमांड का टोटल होना चाहिए, यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 वो भी 34 होना चाहिए, और सप्लाई का जो टोटल है वो भी 34 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमने चेक कर ली, ये प्रॉब्लम है, अगर दोनों चीज़ सेम हो रही है देन द प्रॉब्लम इज़ द बेसिक बैलेंस प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ द बेसिक बैलेंस प्रॉब्लम। अब हम लोग आगे छोड़े जाते हैं, अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सो ये प्रॉब्लम का पूरा नाम ही है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो हमको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से नॉर्थ हमको स्टार्ट करना है। तो नॉर्थ विच इज़ दी अपर मोस्ट यानी कि जो 19 लिखे है, 19 की जो D1 वाला जो वेयर हाउस है उसकी डिमांड कितनी है। तो क्या आप डिमांड देखो, नीचे 5 डिमांड लिखाई, राइट। तो आप उसको कितना, जो फर्स्ट सेल है उसको कितना सप्लाई कर सकते हो। तो कि S1 जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 7, राइट। तो 7 में से 5 तो वो उसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक हम उसको दे सकते हैं, राइट। उसके मुताबिक उसको हम लोग दे सकते हैं, यानी ये 5 वाला जो D1 का डिमांड था वो वहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही फुलफिल हो गया। अब उसकी डिमांड वहाँ पे फर्स्ट कॉलम ऑफ डिमांड विच इज़ टू बी फुलफिल, अब उसको हम लोग और ज़्यादा नहीं दे सकते। देन वी कैन मूव फॉरवर्ड्स टू दी, कहाँ पे जाते हैं हम लोग, D1 वाला जो है उसका अपर मोस्ट कॉर्नर, D2 का जो D2S1 उसको हम लोग, क्योंकि ऊपर वाले कॉर्नर से हमको स्टार्ट करना है। सो D2S1 जो है उसकी जो D2 का जो डिमांड है वो डिमांड कितना है, 8। नीचे देखोगे तो नीचे 8 डिमांड लिखी है, राइट। अब S1 जो कैपेसिटी थी S1 की, जो सप्लाइंग जो मैन्युफैक्चरिंग S1 यूनिट है उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 7 वो सप्लाई कर सकता था, राइट। उसने ऑलरेडी 5 D1 को दे चुके हैं। अब कितने दे सकते हैं, 7 में से 5 चले गए तो 2 फिर बचते हैं, तो हमने वहाँ पे D2 को 2 दे दिया। अब हमें पूरे D2 का जो बचती है उसकी डिमांड कितनी थी, 8 डिमांड करता था, राइट। तो अब उसके नीचे उसकी डिमांड पूरी करने के लिए हम उसके नीचे वाले सेल के अंदर चले गए, राइट। अब डिमांड जो है 8 है, 2 S1 ने दे दिए, अब S2 कितना दे सकता है। तो कि S2 की सप्लाई करने की कैपेसिटी कितनी है, 9, राइट। हमें यहाँ पे चाहिए कितना, 8 फुलफ़िल करने के लिए, राइट। 8 फुलफ़िल करने के लिए चाहिए हमें कितनी, यानी हमें 6 चाहिए, 6 दे देंगे तो फिर ये 8 हो जाएगा कंप्लीट। 9 में से तो 6 ही दे ही सकते हैं, तो 6 दे दिए। अब D2 का भी जो डिमांड था वो भी, उसका जो डिमांड कर रहा था वो हमें डिमांड फुलफ़िल कर दी है, राइट। अब S1 तो पूरा ही हो चुका था। आप देखो S1 के अंदर 5 और 2 7 हो गए। अब S2 में हमने D2 के अंदर 6 दे दिए हैं, राइट। अब वहाँ पे कुछ दे नहीं सकते, तो उसके एकदम बाजू वाले जो सेल है, राइट, वो सेल पे जाएंगे हम लोग। वो सेल के अंदर हम देखेंगे कि 6 दे चुके हैं, 9 सप्लाई कर सकता है। यहाँ पे कितना दे सकते हैं, यहाँ पे डिमांड कितना है D3 का डिमांड 7 है, बट 7 उसकी डिमांड फुलफ़िल हो नहीं सकती। कितनी फुलफ़िल हो सकती है, यहाँ से S2 से, S2 3 दे सकता है, तो 3 दे दिया S2 ने, राइट। अब उसके नीचे वाले कॉर्नर पे चले गए, उसके नीचे वाले सेल के अंदर चले जाएंगे, राइट। अब S3 जो है उसकी
अभी D3 का डिमांड बाकी है, हमने 3 ही पूरा किया है डिमांड, उसकी डिमांड 7 थी। अब S3 से हम लोग थोड़ा ले सकते हैं। S3 का सप्लाई कितना है 18, पर डिमांड कितनी बाकी है, यहाँ पे 4 की डिमांड बाकी है। तो 4 की डिमांड हमने यहाँ से S3 से ले ली और D3 का पूरा डिमांड हमने फुलफ़िल कर दिया। अब जो भी बचता है S3 क्या देगा, तो कि D4 था, उसका डिमांड 14 था और हमारे पास 14 ही बचे हैं, यानी इतने ही बचने चाहिए लास्ट वाले के लिए। तो वो डिमांड उसकी भी फुलफ़िल हो रही। तो अब देखो कि प्रॉब्लम एक तो बैलेंस प्रॉब्लम था, और आपने सबकी डिमांड जो है चारों वेयर हाउसेस D1, D2, D3 और D4 सारों की डिमांड है वो फुलफ़िल कर दी है। सो ये प्रॉब्लम का आपने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपने कर लिया है। अब इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? आंसर देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं जो आपने जो भी सेल के अंदर एलोकेशन किया है, कुछ नंबर्स आपने राउंड करके रखे हैं, वो सेल का आपको मल्टीप्लिकेशंस करना है। देखिए 19 इंटू 5, 19 इंटू 5, 30 प्लस करके प्लस 30 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 17 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 14, ये चीज़ आपका हो गया। अब ये चीज़ हो जाने के बाद आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप देखिए, ये स्लाइड के अंदर आप देखोगे ना, तो ये भी चीज़ आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट किया है, 19 इंटू 5 इंटू 19 प्लस 2 इंटू 13 प्लस 6 इंटू 13 प्लस, आप देखिए जो मैंने पूरा बोला वही है। अब उसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया 1015 रुपीज़, 1015 रुपीज़। अब वहाँ पे एक हमने वो भी चेक करना बाकी था कि वो नॉन नेगेटिव फंक्शंस तो नहीं है, डीजनरेट तो नहीं है। तो m प्लस n माइनस 1, तो m दैट इज़ दी रो कितनी है, यानी 3 रो है। कॉलम कितनी है, 4 कॉलम है। -1 यानी 3 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज़ दी 6। सो ये जो नेगेटिव नहीं आ रहा है दैन इट इज़ दी नॉन नेगेटिव फंक्शंस, राइट। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये हमने आज जो है वो प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से कैसे ट्रांसपोर्टेशंस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो आज हमने पूरा सीखा है। अगर आपको ये टेक्निक के अंदर किसी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर, ये जब यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस के अंदर आप मुझको वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। और अगर नेक्स्ट आप कमेंट करेंगे उसके बेस पे आपको अगर ये टेक्निक के अंदर और एक एग्जांपल की ज़रूरत है तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं कुछ ऐसा प्लान करूँगा कि ये जो पूरा एग्जांपल है उसको मैं बुक के अंदर कैलकुलेट करके आपको बताता जाऊँगा। तो आप अपने जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उसको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखिएगा, और कमेंट सेक्शंस के अंदर कंपलसरी सभी स्टूडेंट को अपना एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. So this is all about the lecture number 3 of our week of the operation research. I hope you all are getting properly, and thank you so much for watching this video. Goodbye.